एजेकियल 47 चैप्टर 48 चैप्टर हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से और फिर पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। एजेकियल 47 चैप्टर 48 चैप्टर किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। रिबांता अश्कर खतीन रबहा अखासिया लरबहा अखातकिन ब अश्कर खतीन रबहम बरहसा दहदुल रहा हदेतकिन ब अश्कर खतीन रबहा ताल रबहा खासियान तुखम बहसा। धन्यवाद करते हैं खुदा, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। हम आपसे विनती करते हैं, हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारी मदद कीजिए और हमारे जीवन को बदल दीजिए। जितना आप परमेश्वर हमारी सहायता में उतर कर लाओगे वचन को, उतना ज़्यादा हम अपने अंदर परमेश्वर के भले कामों को देख पाएंगे और कर पाएंगे। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, हमें सिखाओ और समझाओ वचनों को। यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। Ezekiel 47 verse, the vision of the holy waters, etc. Afterward he brought me again unto the door of the house, and behold, waters issued out from under the threshold of the house eastward, for the forefront of the house stood toward the east, and the waters came down from the right side of the house at the south side of the altar. Then brought he me out of the way of the gate northward, and led me about the way without unto the utter gate by the way that looketh eastward, and behold, there ran out waters on the right side. And when the man that had the line in his hand went forth eastward, he measured 1,000 cubits, and he brought me through the waters. The waters were to the ankles. Again he measured 1,000 and brought me through the waters. The waters were to the knees. Again he measured 1,000 and brought me through the waters were to the loins. Afterward he measured 1,000, and it was a river that I could not pass over, for the waters were risen. Waters to swim in, a river that could not be passed over. And he said unto me, Son of man, hast thou seen this? Then he brought me and caused me to return to the brink of the river. Now when I had returned, behold, at the bank of the river was very many trees on the one side and on the other. Then said he unto me, These waters issue out toward the east country, and go down into the desert, and go into the sea, which being brought forth into the sea, the waters shall be healed. And it shall come to pass that everything that liveth, which moveth whithersoever the rivers shall come, shall live. And there shall be a very great multitude of fish, because these waters shall come thither. For they shall be healed, and everything shall live whither the river cometh. And it shall come to pass that the fishers shall stand upon it from En Gedi even unto En Eglam. There shall be a place to spread forth nets. Their fish shall be according to their kinds, as the fish of the great sea, exceeding many. But the miry places thereof and the marishes thereof shall not be healed. They shall be given to salt. And by the river upon the bank thereof, on this side and on that side, shall grow all trees for meat, whose leaf shall not fade, neither shall the fruit thereof be consumed. It shall bring forth new fruit according to his months, because their waters they issued out of the sanctuary, and the fruit thereof shall be for meat, and the leaf thereof for medicine. Thus saith the Lord God,
This shall be the border whereby ye shall inherit the land according to the 12 tribes of Israel. Joseph shall have 2 portions, and ye shall inherit it, one as well as another, concerning the which I lifted up mine hand to give it unto your fathers. And this land shall fall unto you for inheritance. And this shall be the border of the land toward the north side. From the great sea, the way of Hethlon Asami, go to Zedad, Hamath, Berotha, Sibraim, which is between the border of Damascus and the border of Hamath, Hazarahatikon, which is by the coast of Haran, and the border from the sea shall be Hazar Enam, the border of Damascus, and the northward, and the border of Hamath, and this is the north side. And the east side ye shall measure from Haran, and from Damascus, and from Gilead, and from the land of Israel by Jordan, from the border unto the east sea, and this is the east side. And the south side southward from Tamar even to the waters of strife in Kadesh, the river to the great sea, and this is the south side southward. The west side also shall be the great sea from the border till a man come over against Hamath. This is the west side, so shall ye divide this land unto you according to the tribes of Israel. And it shall come to pass that ye shall divide it by lot for an inheritance unto you and to the strangers that sojourn among you, which shall beget children among you, and they shall be unto you as born in the country among the children of Israel. They shall have inheritance with you among the tribes of Israel. And it shall come to pass that in what tribe the stranger sojourneth, there shall ye give him his inheritance, saith the Lord God. Chapter 48. The portions of the 12 tribes. First verse say, Now these are the names of the tribes. From the north end to the coast of the way of Hethlon, as one goeth to Hamath, Hazarenam, the border of Damascus, northward to the coast of Hamath, for these are his sides, east and west, a portion for Dan. And by the border of Dan, from the east side unto the west side, a portion for Asher. And by the border of Asher, from the east side even unto the west side, a portion for Naphtali. And by the border of Naphtali, from the east side unto the west side, a portion for Manasseh. And by the border of Manasseh, from the east side unto the west side, a portion for Ephraim. And by the border of Ephraim, from the east side even unto the west side, a portion for Reuben. And by the border of Reuben, from the east side unto the west side, a portion for Judah. And by the border of Judah, from the east side unto the west side, shall be the offering which ye shall offer of 25,000 reeds in breadth and in length, as one of the other parts, from the east side unto the west side, and the sanctuary shall be in the midst of it. The oblation that ye shall offer unto the Lord shall be of 25,000 in length, and of 10,000 in breadth, and for them, even for the priests, shall be this holy oblation toward the north 25,000 in length, and toward the west 10,000 in breadth, and toward the east 10,000 in breadth, and toward the south 25,000 in length. And the sanctuary of the Lord shall be in the midst thereof. It shall be for the priests that are sanctified of the sons of Zadok, which have kept my charge, which went not astray when the children of Israel went astray, as the Levites went astray.
And this oblation of the land that is offered shall be unto them a thing most holy by the border of the Levites. And over against the border of the priests the Levites shall I have 25,000 in length and 10,000 in breadth. All the length shall be 25,000 and the breadth 10,000, and they shall not sell of it, neither exchange nor alienate the first fruits of the land, for it is holy unto the Lord. And the 5,000 there are left in the breadth over against the 25,000 shall be a profane place for the city, for dwelling and for suburbs, and the city shall be in the midst thereof. And this shall be the measures thereof: the north side 4,400, and the south side 4,000 and 500, and on the east side 4,500, and the west side 4,500, and the suburbs of the city shall be toward the north 250, and toward the south 250, and toward the east 250, and toward the west 250, and the residue in length over against the oblation of the holy portion shall be 10,000 eastward and 10,000 westward, and it shall be over against the oblation of the holy portion, and the increase thereof shall be for food unto them that serve the city, and they that serve the city shall serve it out of all the tribes of Israel. All the oblation shall be 25,000 by 25,000. Ye shall offer the holy oblation for square with the possession of the city, and the residue shall be for the prince on the one side and on the other of the holy oblation, and of the possession of the city over against the 25,000 of the oblation toward the east border, and westward over against the 25,000 toward the west border over against the portions for the prince. And it shall be the holy oblation, and the sanctuary of the house shall be in the midst thereof. Moreover, from the possession of the Levites and from the possession of the city, being in the midst of that which is the prince between the border of Judah and the border of Benjamin, shall be for the prince. As for the rest of the tribes, from the east side unto the west side, Benjamin shall have a portion, and by the border of Benjamin, from the east side unto the west side, Simeon shall have a portion, and by the border of Simeon, from the east side unto the west side, Issachar a portion, and by the border of Issachar, from the east side unto the west side, Zebulun a portion, and by the border of Zebulun, from the east side unto the west side, Gad a portion, and by the border of Gad, and at the south side southward, the border shall be even from Tamar unto the waters of strife in Kadesh, and to the river toward the great sea. This is the land which ye shall divide by lot unto the tribes of Israel for inheritance, and these are their portions, saith the Lord God. And these are the goings out of the city on the north side, 4,500 measures. And the gates of the city shall be after the names of the tribes of Israel: 3 gates northward, 1 gate of Reuben, 1 gate of Judah, 1 gate of Levi, and at the east side 4,500, and 3 gates, and 1 gate of Joseph, 1 gate of Benjamin, 1 gate of Dan, and at the south side 4,500 measures, and 3 gates, 1 gate of Simeon, 1 gate of Issachar, 1 gate of Zebulun. At the west side
4,500 with their 3 gates, 1 gate of Gad, 1 gate of Asher, 1 gate of Naphtali. It was round about 18,000 measures, and the name of the city from that day shall be, The Lord is there. यह हिजकिय्याह की भविष्यवाणी 47 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। मंदिर से बहता सोता। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया, और भवन की डेवढ़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था, और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिणी ओर नीचे से निकलता था। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया, और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया, और दक्षिणी ओर से जल पसीज कर बह रहा था। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया, और जल टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया, और जल घुटनों तक था। फिर और 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया, और जल कमर तक था। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे, और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं न जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था, अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई न जा सकता था। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने यह देखा है? तब उसने मुझे नदी के किनारे किनारे लौटाकर पहुंचा दिया। लौटकर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तटों पर बहुत से वृक्ष हैं। तब उसने मुझसे कहा, यह सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है, और अराबा में उतरकर ताल की ओर बहेगा, और यह भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा, और उसका जल मीठा हो जाएगा। जहाँ जहाँ यह नदी बहे, वहाँ वहाँ सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे, और मछलियाँ भी बहुत हो जाएंगी, क्योंकि इस सोते का जल वहाँ पहुँचा है, और ताल का जल मीठा हो जाएगा। और जहाँ कहीं यह नदी पहुँचेगी, वहाँ सब जंतु जिएंगे। ताल के तट पर मछुए खड़े रहेंगे, और एन गदी से लेकर एनेग्लैम तक वहां जाल फैलाए जाएंगे, और उन्हें महासागर की सी भांति भांति की अनगिनत मछलियां मिलेगी। परंतु ताल के पास जो दलदल और गड्ढे हैं, उनका जल मीठा न होगा, वे खारे ही रहेंगे। नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते न मुरझाएंगे, और उनका फलना भी कभी बंद न होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे। उनके फल तो खाने के, और पत्ते औषधि के काम आएंगे। देश की सीमाएं 13 वचन से आगे। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जिस सीमा के भीतर तुमको यह देश अपने 12 गोत्रों के अनुसार बांटना पड़ेगा, वह यह है, यूसुफ को 2 भाग मिले, उसे तुम एक दूसरे के समान निज भाग में पाओगे, क्योंकि मैंने शपथ खाई कि उसे तुम्हारे पितरों को दूंगा, इसलिए यह देश तुम्हारे निज भाग ठहरेगा। देश की सीमा यह हो, अर्थात उत्तरी ओर की सीमा महासागर से लेकर हेतलोन के पास से सदाद की बाटी तक पहुँचे, और उस सीमा के पास हमात बेरोता और सिब्रैम, जो दमिश्क और हमात के सीमाओं के बीच में है, और सरहत्ती कोन तक, जो हौरान की सीमा पर है। यह सीमा समुद्र से लेकर दमिश्क की सीमा के पास के हसरेनोन तक पहुँचे, और उसके उत्तरी और हमात हो। उत्तर की सीमा यही हो। पूर्वी सीमा जिसके एक ओर हौरान, दमिश्क और यरदन की ओर गिलाद और इस्राएल का देश हो। उत्तरी सीमा से लेकर पूर्वी ताल तक उसे मापना। पूर्वी सीमा तो यही है हो। दक्षिणी सीमा तामार से लेकर कादेश के मरीबोत नामक सोते तक, अर्थात मिस्र के नाले तक और महासागर तक पहुँचे। दक्षिणी सीमा यही हो। पश्चिमी सीमा दक्षिणी सीमा से लेकर हमात की घाटी के सामने तक का महासागर हो। पश्चिमी सीमा यही हो।
इस प्रकार देश को इसराइल के गोत्रों के अनुसार आपस में बांट लेना, इसको आपस में और उन परदेशियों के साथ बांट लेना जो तुम्हारे बीच रहते हुए बालकों को जन्माए। वे तुम्हारी दृष्टि में देशी इसराइलियों के समान ठहरे और तुम्हारे गोत्रों के बीच अपना अपना भाग पाए। जो परदेशी जिस गोत्र के देश में रहता हो उसको वही भाग देना। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। गोत्रों में भूमि वितरण 48 अध्याय पहले वचन से। गोत्रों के भाग ये हो, उत्तरी सीमा से लगा हुआ हित्तलोन के मार्ग के पास से हमात की घाटी तक और दमिश्क के सीमा के पास के हसरेनोन के से उत्तर की ओर हमात के पास तक एक भाग दान का हो और उसकी पूर्वी और पश्चिमी सीमा भी हो। दान की सीमा से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक आशेर का एक भाग हो। आशेर के सीमा से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक नप्ताली का एक भाग हो। नप्ताली की सीमा से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक मनश्शे का एक भाग। मनश्शे की सीमा से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक एप्रैम का एक भाग हो। एप्रैम की सीमा से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक रूबेन का एक भाग हो। रूबेन की सीमा से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक यहूदा का एक भाग हो। देश के मध्य में भूमि का विशेष भाग यहूदा की सीमा से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक वह अर्पण किया हुआ भाग हो। जिसे तुम्हें अर्पण करना होगा वह 25,000 बांस चौड़ा और पूर्व से पश्चिम तक किसी एक गोत्र के भाग के तुल्य लंबा हो और उसके बीच में पवित्र स्थान हो। जो भाग तुम्हें यहोवा को अर्पण करना होगा उसकी लंबाई 25,000 बांस और चौड़ाई 10,000 बांस की हो। यह अर्पण किया हुआ पवित्र भाग याजकों को मिले। वह उत्तर की ओर 25,000 बांस लंबा, पश्चिम की ओर 10,000 बांस चौड़ा, पूर्व ओर 10,000 बांस चौड़ा और दक्षिण की ओर 25,000 बांस लंबा हो और उसके बीचों बीच यहोवा का पवित्र स्थान हो। यह विशेष पवित्र भाग सादोक की संतान के उन याजकों का हो जो मेरी आज्ञाओं का पालन करते रहे और इसराइलियों के भटक जाने के समय लेवियों के समान न भटके थे। इसलिए देश के अर्पण किए हुए भाग में से यह उनके लिए अर्पण किया हुआ भाग अर्थात परम पवित्र देश ठहरे और लेवियों की सीमा से लगा रहे। याजकों की सीमा से लगा हुआ लेवियों का भाग हो। वह 25,000 बांस लंबा और 10,000 बांस चौड़ा हो। सारी लंबाई 25,000 बांस की और चौड़ाई 10,000 बांस की हो। वे उसमें से न तो कुछ बेचे न दूसरी भूमि से बदले और न भूमि की पहली उपज और किसी को दी जाए, क्योंकि वह यहोवा के लिए पवित्र है। चौड़ाई के 25,000 बांस के सामने जो 5,000 बचा रहेगा वह नगर और बस्ती और चराई के लिए साधारण भाग हो और नगर उसके बीच में हो। नगर की यह माप हो अर्थात उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की ओर 4,500 हाथ। नगर के पास उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में चराइयाँ हो जो 250 बांस चौड़ी हो। अर्पण किए हुए पवित्र भाग के पास की लंबाई में से जो कुछ बचे अर्थात पूर्व और पश्चिम दोनों ओर 10-10 बांस जो अर्पण किए हुए भाग के पास हो उसकी उपज नगर में परिश्रम करने वालों के खाने के लिए हो। इस्राएल के सारे गोत्रों में से जो नगर में परिश्रम करे वे उसकी खेती किया करे। सारा अर्पण किया हुआ भाग 25,000 बांस लंबा और 25,000 बांस चौड़ा हो। तुम्हें चौकोर पवित्र भाग अर्पण करना होगा जिसमें नगर की विशेष भूमि हो। जो भाग रह जाए वह प्रधान को मिले। पवित्र अर्पण किए हुए भाग के और नगर की विशेष भूमि के दोनों ओर अर्थात उनके पूर्व और पश्चिम की ओर के 25,000 बांस की चौड़ाई के पास जो और गोत्रों के भागों के पास रहे वह प्रधान को मिले। अर्पण किया हुआ पवित्र भाग और भवन का पवित्र स्थान उनके बीच में हो।
जो प्रधान का भाग होगा वह लेवियों के बीच और नगरों की विशेष भूमि हो। प्रधान का भाग यहूदा और बन्यामीन के सीमा के बीच में हो। अन्य गोत्रों के भाग, 23 वचन से आगे, अन्य गोत्रों के भाग इस प्रकार हो। पूर्व से पश्चिम तक बन्यामीन का एक भाग हो। बन्यामीन की सीमा से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक शिमोन का एक भाग। शिमोन की सीमा से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक इस्साकार का एक भाग। इस्साकार की सीमा से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक जबूलून का एक भाग। जबूलून की सीमा से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक गाद का एक भाग। और गाद की सीमा से के पास दक्षिण की ओर की सीमा तामार से लेकर कादेश के मरीबोत नामक सोते तक और मिस्र के नाले और महासागर तक पहुँचे। जो देश तुम्हें इस्राएल के गोत्रों को बांटना होगा वह यही है, और उनके भाग भी ये ही है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। नगर के द्वार, 30 वचन से आगे, नगर के निकास ये हो, अर्थात उत्तर की ओर जिसकी लंबाई 4,500 बांस की हो, उसमें 3 फाटक हो, अर्थात एक रूबेन का फाटक, एक यहूदा का फाटक और एक लेवी का फाटक हो, क्योंकि नगर के फाटकों के नाम इस्राएल के गोत्रों के नामों पर रखने होंगे। पूर्व की ओर सीमा 4,500 बांस लंबी हो और उसमें 3 फाटक हो, अर्थात एक यूसुफ का फाटक, एक बन्यामीन का फाटक और एक दान का फाटक हो। दक्षिण की ओर सीमा 4,500 बांस लंबी हो और उसमें 3 फाटक हो, अर्थात एक शिमोन का फाटक, एक इस्साकार का फाटक और एक जबूलून का फाटक हो। और पश्चिम की ओर सीमा 4,500 बांस लंबी हो और उसमें 3 फाटक हो, अर्थात एक गाद का फाटक, एक आशेर का फाटक और एक नप्ताली का फाटक हो। नगर के चारों ओर का घेरा 18,000 बांस का हो और उस दिन से आगे को नगर का नाम यहोवा शम्मा रहेगा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जो यह हिजकिय्याह के पुस्तक भविष्यवाणी के पढ़ने में हमारी सहायता की। इसके अंदर के वचन हमको सीखने के लिए परमेश्वर अनुग्रह बढ़ा, शांति दे हमको, कि हम ये वचन को पूरी तरह से अच्छे से अपने अंदर हम समझ पाए, सीख पाए और हमारे अंदर इसका इस्तेमाल कर पाए। परमेश्वर के भेद रहस्य को समझने का आनंद उठा पाए और परमेश्वर के राज्य को पिता हम लाभदायी बन जाए। पिता हम विनती करते हैं कि हमारा उठना बैठना तेरे वचन के आधार से रहे। जो तू कहता है, जिस जगह में तू हमको रखना चाहता है, जिस तरीके से हमारा इस्तेमाल करना चाहता है, तू हमारा जीवन पूरा करके दे। मेरे पिता परमेश्वर, हमारे रास्ते खोलने वाला तो परमेश्वर है। जो बंद दरवाजे हैं नासरी यीशु के नाम में पिता खुल जाए। जो पिता तेरे लिए पिता परमेश्वर हमें आगे बढ़ने से रोकने वाले शक्तियों के दरवाजे टूट जाए और हमारा जीवन आगे बढ़ता जाए। मेरे परमेश्वर, हमारा जीवन हर गेट्स को पार करके जाए। जो गेट्स हमारे सामने बंद कर दिए जाते हैं वो परमेश्वर पिता हम खोल देते हैं और हमारा आगे बढ़ना हम आज़ाद करते हैं। हम तुझसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि हमारी अगुवाई कर, ताकि हम पिता शत्रुओं के चपेट में ना आए। हमारे वचन के अंदर से पिता परमेश्वर हमारे अंदर उजियाला ज्योति बना रहे। विनती करते हैं पिता परमेश्वर, हमें फिट एंड फिक्स कर, ईश्वरीय रचना में, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आ। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, 2 years बाइबल रीडिंग प्लान हम पढ़ने के लिए आज है। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, जॉन 17 चैप्टर 1 वर्स से 10 वर्स, 2 क्रॉनिकल्स 5 चैप्टर 6 चैप्टर, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 1 वचन से 10 वचन, इतिहास, दूसरा इतिहास की पुस्तक 5 अध्याय 6 अध्याय। हम अकेले में बैठकर ये अध्यायों को पढ़ना है। जॉन 17 चैप्टर 1 वर्स से 10 वर्स, 2 क्रॉनिकल्स 5 चैप्टर 6 चैप्टर, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 1 वचन से 10 वचन, दूसरे इतिहास की पुस्तक 5 अध्याय 6 अध्याय। अकेले व्यक्तिगत समय में जब हम पढ़ेंगे, परमेश्वर का आत्मा हमें व्यक्तिगत रूप से
हमारे अंदर कुछ बातों को संवारेगा, सुधारेगा और सरल मार्ग में लेकर आएगा। जिस व्यक्तिमत्व में परमेश्वर हमको रखना चाहता है वो व्यक्तिमत्व का चरित्र उभर कर लाएगा। इसके लिए हम अकेले में बैठ के पढ़ने के लिए कह रहे हैं। ओके, अगर आप अपने तरीके से पढ़ना चाहते हैं, अपनी कोई योजना में से इसे पढ़ना चाहते हैं, वैसे आप कर सकते हैं, अपनी अवस्था को आप चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम व्यक्तिगत इसीलिए कहे क्योंकि हमने शुरुआत से ये ध्यान रखा है कि हम अकेले में बैठकर कुछ पर्सनालिटी परमेश्वर की हमें बनने का अवसर हम देंगे ये वचन को पढ़ते वक्त। ओके, तो आपकी मर्जी है, जब आप अकेले पढ़ना चाहते वैसे कीजिए, अगर आप अपनी अवस्थाओं के अनुसार इसे पढ़ना चाहते वैसे आप पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, और अकेले में बैठकर जो लोग पढ़ेंगे या कैसे भी जो पढ़ेंगे, परमेश्वर हमारे अंदर काम करे और उस अवस्थाओं में से परमेश्वर हमारे अंदर चरित्र तैयार करे जो उसको चाहिए, उसके राज्य के लाभदायी हो। ये होने के लिए उसने उसका आत्मा हमारे अंदर रखा है, अनुग्रह का आत्मा, विश्वास योग्य आत्मा हमारे अंदर परमेश्वर का काम करता है। निश्चित हमने उसका लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। पवित्र आत्मा हमें फिट एंड फिक्स कीजिए, ईश्वरीय रचना, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।